اچھا جناب، اسی پروگرام میں باقاعدہ آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تمام موجود پینل میں اندر تمام لوگوں کو خوش آمدید کہنے ہیں. اور آج نے جو پروگرام ہے یہ پیر سید کرام حسین شاہ صاحب نے تعزیتی ریفرنس استے میں سب سے پہلے تلاوت استے ہے پیر علی شاہ بخاری صاحب نے ریکویسٹ کروں گا کہ وہی جناب تلاوت کو آغاز کرنے سے باقاعدہ پروگرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ. جناب علی بخاری صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا. گزشتہ کئی دنوں سے سلاؤ سوگوار ہے اور اس کا بیسک ریزن پیر سید کرام حسین شاہ صاحب مظل علیہ جو ہمارے درمیان ایک طویل عرصہ سے سلاؤ میں آباد تھے، اور ان کا اہلیان سلاؤ کے ساتھ برطانیہ بھر میں کمیونٹی کے ساتھ اور پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر ان کا ایک بڑا مقام و مرتبہ تھا. اور ان کی اچانک یہ وفات جو آزاد کشمیر ان کے اپنے گاؤں گلوئی سیدہ میں اور وہاں سے گلوئی سیدہ اور سرساوا تحصیل سنسا ضلع کوٹلی کے اندر ہوئی. اور ان کی اس یہ کون بول رہا ہے؟ یہ کوئی کسی ایک بندے کی آواز آ رہی ہے جو باقی سب میوٹ کر لیں، صرف جو بول رہا ہے وہی ان میوٹ رکھیں، باقی سب میوٹ کر لیں. بس ٹھیک. پیر سید کرام حسین شاہ صاحب جو گلوئی سیدہ میں ان کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد پورے آزاد کشمیر سے اور برطانیہ کے بہت ساری کمیونٹی کے لوگ آزاد کشمیر کے اندر موجود تھے، انہوں نے بھی ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی، اور بڑی تعداد میں لوگوں نے انہیں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا. آج ہم نے گزشتہ چند دن پہلے چند ساتھیوں کے ساتھ ہم نے تعزیتی پروگرام ایک کیا تھا. آج کل جو کہ کرونا وائرس اور ہم ٹیئر 4 کے اندر ہیں، جس کے اعتبار سے کسی جگہ پر بھی کمیونٹی اکٹھے بیٹھ نہیں سکتی، ہم مل بیٹھ کر وہ اس غم کو بانٹ نہیں سکتے. تو ہم نے یہ آن لائن زوم کے ذریعے ہم نے سوچا کہ ہم سب مل کر اس کے اوپر جناب پیر کرام حسین شاہ صاحب کو یاد بھی کریں اور ان کے لیے باقاعدگی سے تعزیتی ریفرنس بھی ہو، اور ساتھ ان کے اختتام کے اوپر ہم دعائے خیر بھی کریں. تو میں آج اس پینل میں موجود ہمارے بہت سے سینئر لوگ جو جن کا تعلق سلاؤ سے بھی ہے اور سلاؤ سے باہر مختلف شہروں کے اندر سے بھی لوگ جو ہے وہ اس پروگرام میں موجود ہیں. تو میں تمام احباب کو ویلکم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں گزارش کروں گا چودھری اورنگزیب صاحب سے جو کہ کو ہوسٹ ہیں آج کے اس پروگرام کے، کہ وہ اس پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز کریں. چودھری اورنگزیب صاحب.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर महमूद रियाज साहब, आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर भी हैं आप। अल्लाह ने आपको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यकीनी तौर पर एक बड़ा फरीज़ा सर अंजाम किया है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से, और बिलखसूस स्पेशली क्योंकि स्लाउट एयर 4 पे है, तो एक बड़ी हम पे बड़ी आफत आई। एक बड़े हमारे जो शफीक बुजुर्ग थे, जो हमारे रहनुमा थे, जिनकी बड़ी सियासी, समाजी, मजहबी और कम्युनिटी के लिए बड़ी खदमात हैं, उनका वसाल हुआ। वो पाकिस्तान में इंतकाल कर गए। पीर करामत शहनशाह साहब, पूरा असलाह, पूरा अहलियान बरतानिया में मैं समझता हूँ अहलियान कश्मीर उनकी शख्सियत का मोतरिफ है, उनकी खदमात का मोतरिफ है। तो यकीनी तौर पर यह खबर उनके इंतकाल के हवाले से हम पर बड़ी गमगीन थी, हम बड़े परेशान थे, और ऐसी सिचुएशन में हम इकट्ठे भी नहीं हो सकते थे जहाँ पे हम अपनी गम का इजहार कर सकें, अपनी ताज़ियत का इजहार कर सकें। बहुत से बेशुमार लोगों से हमारे राब्ते हुए, सैकड़ों की तादाद में। तो ये डॉक्टर महमूद रियाज साहब का मैं शुक्रिया दोबारा अदा करूंगा कि उन्होंने तजवीज़ को अपनाते हुए तमाम दोस्तों को इकट्ठा, एक ताज़ियती रेफरेंस के हवाले से इकट्ठा किया, ताकि हम अपना इज़हार ख्याल भी कर सकें, उनकी यादों को भी हम याद उनकी मना सकें, और उनके जो किरदार हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स हमारी कम्युनिटी के हवाले से, जो सियासी खदमात हैं, जो समाजी खदमात हैं, जो मजहबी बिलखसूस उनकी खदमात हैं, उनका हम यहाँ पे जिक्र कर सकें और अपने गम को थोड़ा सा कम कर सकें। यकीनी तौर पर जब हम इकट्ठे एज ए कम्युनिटी, एज ए फैमिली हम इकट्ठे होते हैं, तो अपने गम को कम करने के लिए उनकी याद मनाते हैं। तो एक बड़ी अच्छी कावश है जिसमें इन्हें ख्वाजा तासीन पेश करता हूँ। यकीनी तौर पर पीर करामत शाह साहब की जो खिदमात हैं, जो उनका किरदार है, उनका अता करना कम से कम मेरे बस की बात नहीं है। बड़ी शख्सियत थे, बड़े शफीक थे, उनका लोगों के साथ हुस्न सलूक बड़ा काबिल दी था। वो बड़े प्यार वाली शख्सियत थे, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, बड़े अदब के साथ, बड़ी शफीक शख्सियत थी उनकी। वो अक्सर जब मैं मुझे काफ़ी दफ़ा अल्लाह पाक ने मौका दिया कि मैं पीर शाह साहब के साथ मुलाकात मेरी हुई, मेरी उनसे काफ़ी मामलात पर बातचीत हुई। वो बड़े अवेयर शख्सियत थी। उन्हें आज़ाद कश्मीर की सियासत पर, पाकिस्तान की सियासत पर, बरतानिया के हालात पर मुकम्मल दस्तरस हासिल थी। वो यकीनी तौर पर हमारा बहुत बड़ा सरमाया थे। उनके यहाँ दुनिया से चले जाने से यकीनी तौर पर बड़ा खला है। दुआ है अल्लाह ताला उनकी जो खिदमत के सिले में उन्हें जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और हमें उनका कोई नेमल बदल दे। तो यकीनी तौर पर मैं खुद भी उनके वसाल की वजह से काफ़ी अपसेट हूँ, काफ़ी गमगीन हूँ। तो ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी डॉक्टर साहब ने हमें मुहैया की। मैं तमाम दीगर जो हमारे दोस्त ऑनलाइन हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी आकर अपने इंतहाई मुख्तसर वक्त में पीर साहब को ख्वाजा तासीन पेश करें। मैं जो औरंगजेब साहब के बाद मैं फॉर्मर मेयर ऑफ स्लो जनाब राजा लतीफ़ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का आगाज़ फरमाएं। जी मुझे कहा है जी राजा लतीफ़ साहब जी। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला मरहूम जन्नत में आला मकाम नसीब करे। गातुल जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 50 साल हो चुके हैं शाह साहब से पहली मुलाकात हुई, और फिर ये पूरे 50 साल मैंने भी गुजारे और वो भी यहीं पे थे। एक शफीक और मिलनसार हमदर्द इंसान थे, और हर कौम की खिदमत के लिए हाजिर रहते थे। जहाँ भी उनकी जरूरत पड़ी हमने उनको बताया और अच्छे तरीके से लोगों को हमेशा समझाने की कोशिश की, और जितने भी मामला थे उनको हमेशा अपनी दाने से सुलझाने की कोशिश की। मैं मशकूर रहा हूँ शाह साहब का। हमारी बड़ी मुलाकातें हुई हैं, जो कि बहुत से मौके ऐसे होते थे जब शाह साहब को बुलाना पड़ता था, उनकी हाजिरी बहुत जरूरी होती थी, तो वो एक बुजुर्ग शख्सियत थी। बस हम हर एक ने देखा इस दुनिया से, लेकिन अच्छी बातें कोई लेकर जाए या बाद उनके अच्छी बातें की जाए, वो इसका मतलब क्या है कि वो अल्लाह ताला उन पर करम करेगा। बस हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम नसीब करे और उनके दुआ को सब्र जमील
करे. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ رائے لطیف صاحب. اور میرا فلاح جناب رائے لطیف صاحب سلاؤ کی کمیونٹی کی جان ہے اور انہوں نے بہت اچھی طرح سلاؤ کو سرو کیا، اور اس وقت بھی وہ اپنی سروسز اور ایک بہت بڑے انسٹیٹیوشن کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. ہم ان کا تہ دل سے مشکور ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں انہوں نے پارٹیسپیشن کی. پروگرام باقاعدگی سے آگے بڑھے گا، اور میں نیکسٹ مقرر کو بلانے سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ پیر علی بخاری صاحب جو کہ قریبی عزیز ہیں پیر سید کرامت حسین شاہ صاحب کے، اور آج ان کی فیملی کے ممبر کے طور پر ہم سب پیر علی بخاری صاحب کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ پیر صاحب کی زندگی کے حوالے سے چند جو ہے وہ ہمیں آگاہی دیں گے، اور پھر فالو آن جو پروگرام کے اختتام پہ باقاعدگی سے اجتماعی دعا بھی ہوگی. تو اس سے پہلے میں کسی اور مقرر کو موقع دوں، میں علی بخاری صاحب سے کہوں گا کہ وہ پیر صاحب کی زندگی کے حوالے سے چند جو ہے وہ اپنے کلمات وہ ادا کریں. جی بہت شکریہ محترم ڈاکٹر محمد ریاض صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا جوگی اورنگزیب صاحب کا میں انتہائی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ایک عظیم فریضہ سر انجام دیا ہے. اور محبت کے اظہار کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اور آپ نے یہ طریقہ اختیار کر کے ان سے محبت کرنے والے باقی لوگوں کو بھی یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اپنی اپنی محبت کے نذرانے پیش کر سکیں. تو اللہ پاک آپ کو اس کا اجر کثیر عطا فرمائے. اور یہ جو دل کی بات ہوتی ہے اس کے بغیر کوئی بھی بات آگے چل نہیں سکتی. تو ان کی جو محبت، ان کی جو شفقت، ان کا جو پیار، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، حسن کردار کے ساتھ جو پیش آئے ہیں، اس کا یہ عملی نمونہ ہے کہ آج چھوٹا ہو یا بڑا، خواتین ہوں یا مرد ہوں، وہ کسی بھی برادری سے، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، ہر آنکھ حقیقی معنوں میں اشک بار دیکھی ہے ہم نے. اور ایسے ایسے لوگوں کی طرف سے میسیجز آئے ہیں، ان کی طرف سے فون کالز آئی ہیں کہ جن کو ہم جانتے نہیں تھے، لیکن وہ ہر شخص کو روتے دیکھا اور اس کو غمگین دیکھا، اس لیے کہ وہ ایسی شخصیت تھے جو بلا رنگ و نسل، جو بلا برادری کے تفریق کے، چھوٹے بڑے کے، ہر ایک سے پیار کرتے تھے، ہر ایک سے محبت کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے. جہاں پر کوئی کسی کی خوشی ہے، غمی ہے، اس ایج کے باوجود بھی اور اس عمر کے باوجود بھی ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دکھ درد کے اندر شریک ہوں، وہ ان کی خوشیوں میں اور غمیوں میں ان کے ساتھ جا کر ان کے حوصلے بڑھائیں. اور ظاہر ہے اس وقت تک تو معلوم نہیں ہوتا. اب ان کے جانے کے بعد جو لوگ فون کر کے یا جب تعزیت کرتے ہیں یا میسج دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کس کس مشکل وقت کے اندر انہوں نے لوگوں کو حوصلہ دیا، انہوں نے لوگوں کو کی ڈھارس بندھائی ہے، اور انہیں کہا کہ آپ نے فکر نہیں کرنا، آپ نے پریشانی نہیں کرنی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان تھے، لیکن ان کی حوصلہ افزائی کے بعد ہمارے دلوں کے اندر سکون، راحت، اطمینان ہوا ہے. اور اس کا صلہ یہ ملا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا آپ نے صرف صبر کرنا ہے، اور اس صبر کے صدقے میں اور ان کی دعاؤں کے صدقے میں پھر ہمارا ہر کام آسان ہوتا رہا ہے. تو ان کی جو زندگی ظاہر ہے جس طرح وہ باہر والوں کے ساتھ تھے، اسی طرح ہم فیملی والوں کے ساتھ. اگر باہر کے احباب کے ساتھ اور ان کے دوست احباب، ان کا جو حلقہ احباب ہے، اس کے اندر اتنا دکھ اور غم اور کرب ہے، تو ظاہر ہے ہمارے لیے تو یہ اور بھی بہت بڑا جو یہ تکلیف دہ لمحات ہیں. لیکن چونکہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے، قدرت کا ایک نظام ہے، اور اس دروازے سے ہر ایک نے گزرنا ہے اور اس کو گزر کے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن وہ اپنی جو یادیں چھوڑ کر گئے ہیں، جو اپنا پیار چھوڑ کر گئے ہیں، جو اپنی شفقت چھوڑ کر گئے ہیں، اور سب سے بڑی بات ان کے اندر خودداری تھی، ان کے اندر بے باکی تھی، ان کے اندر جو جرت تھی. وہ ہر بات کے اندر جو مولا علی علیہ السلام نعرہ حیدری لگاتے تھے، وہ علی کرتے تھے، وہ در حقیقت وہ صرف کہتے نہیں تھے بلکہ ان کے اندر کی یہ آواز تھی. اور اس کا عملی نمونہ آپ نے بھی بہت احباب نے جس کسی کو بات کہنی ہو وہ منہ پہ کہہ دیتے تھے. بعض اوقات لوگ اس وقت شاید محسوس کریں، لیکن بعد میں ان کو معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے وہ بات ٹھیک کی ہے. تو یہ جو جرت ہے، یہ بے باکی ہے، یہ جو
उनका निडर होना था और उनके अंदर जो अहले बैत अतहार का वो जो खुसूसी मौला अली का जो फैज़ान था, उसकी झलक नज़र आती थी, और जो अपनी जवानी के वो किस्से सुनाते थे। और हमने तो उनको देखा था बुढ़ापे के अंदर भी, कि कभी हमने उनको झुकते हुए नहीं देखा, कभी उनको हमने जो है वो किसी के खिलाफ बातें करते हुए, जब भी उन्होंने बात की है, लोगों को आपस में जोड़ने की, लोगों से प्यार की, मोहब्बत की, इस पैगाम को उन्होंने पहुँचाया है। और यही वजह है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मोहब्बतें, शफ़क़तें और प्यार जो बखेर कर गए हैं, वो आज उनकी ज़िंदगी चले जाने के बाद भी हम सब के अंदर वो नज़र आ रहा है। और एक ऐसा शख्स जिसको 9 मर्तबा फालिज का अटैक हुआ हो, और वो 90 ईयर से ऊपर, 93, 94 ईयर्स की उम्र में इस दुनिया से जा रहा हो, और आखिरी वक़्त तक भी वो हार नहीं मान रहे थे। लेकिन हमेशा एक बात ज़रूर कही है कि जो मौत का वक़्त मुकर्रर है, उससे हम जो वो फरार इख्तियार नहीं कर सकते। तो मेरे ख़्याल में उनकी जो मोहब्बत, प्यार और दोस्ती वाला जो पैगाम है, अगर हम उस पैगाम को ही आगे बढ़ाते रहें, आगे लेके चलें, तो मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद, उनकी रूह भी खुश होती रहेगी, और हम अपनी ज़िंदगी को भी इंशाअल्लाह और अज़ीज़ मज़ीद सँवार सकेंगे, और माशरे के अंदर अच्छाई और भलाई को आम कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनके बाद चौधरी करामत हुसैन साहब, पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के साबिक सदर, जो करामत साहब से गुजारिश करता हूँ, जो पीर साहब से बहुत करीबी ताल्लुक था और बहुत दरीना ताल्लुक था पीर साहब के साथ इनका, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्याल बताएं। चौधरी करामत साहब, साहब शायद मिस हो रहे हैं बीच में से। मैं जनाब मोहतरम फॉर्मर मेयर ऑफ सॉरी लुटन और कम्युनिटी के बड़े मुतर्रक और मशहूर कालम नवीस जनाब रियाज भट्ट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो पीर साहब के बड़े दरीना ताल्लुक भी था उनका, एक ही हम एक डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले भी हैं, और रियाज भट्ट साहब और पीर साहब और हम लोग एक जमात के साथ भी मुंसलिक रहे बहुत तवील अरसा तक। तो मैं रियाज भट्ट साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्याल बताएं। रियाज भट्ट साहब को म्यूट तो नहीं किया? भट्ट साहब, रियाज भट्ट साहब, उनका माइक कनेक्टेड नहीं है, म्यूट नहीं है, उन्होंने मेरे ख्याल विदाउट माइक ज्वाइन किया। अच्छा, तो शरीफ साहब आप गुफ्तगू का आगाज करें, हम रियाज भट्ट साहब को के साथ राब्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों, भाइयों, डॉक्टर याद साहब, चौधरी रंगदेव साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम के बारे में सोचा और ऑर्गेनाइज किया, और हमें सबको इनवाइट करके एक मौका दिया कि पीर साहब उनके लिए कोई जो भी लफ्ज़ हैं वो अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। मेरे लिए बहुत ही एक पर्सनल लॉस है, क्योंकि जहाँ तक हमारे हमसाए थे, फ़ोन करना और एजुकेशन पर उनकी बहुत ही तवज्जो होती थी कि बच्चों को एजुकेशन दें। जब भी मुझे घर बुलाते या मैं घर उनके जाता सलाम करने, तो कहते कि छोटा तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, एजुकेशन की तवज्जो कर रहे हो कि नहीं। तो और दूसरी बात यह है कि हर बंदा जो अपनी एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता था, उसकी ख्वाहिश होती थी कि पीर साहब मेहमान खुसूसी उसके इवेंट के हों। और ये जहाँ तक मैं जिन लोगों से भी मिला हूँ, हर बंदा उनसे प्यार, हर बंदा उनकी इज्जत, मेरे ख्याल में वो एक आसान बात नहीं है कि हर बंदा उनकी इज्जत, एहतराम और उनकी मशवरे या ये चीज़ें ले। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो हर बंदे के साथ सिंसियर थे और हर बंदे के लिए एक यकसां प्यार देते थे और मशवरा देते थे। कभी किसी को गलत मशवरा नहीं देते थे। कभी एज अ पॉलिटिशियन कई गलतियां होती हैं, और जब भी उन्हें कोई हुआ कि मैंने कहीं कोई गलती की है, उन्होंने फ़ोन करना और कहना कि आ जाओ, घर करनी है, और मुझे बढ़ा के कहना कि शरीफ यहाँ तुम्हारी गलती हुई है, इस चीज़ को दुरुस्त करो। बड़े आराम से, कोशिश से समझा।
और बड़े प्यार से समझाना, और जब उनके घर से निकलते थे तो दिल खुश हो जाता था कि आपने नो अच्छी गुफ्तगू सुनी, अच्छा मशवरा सुना। इसलिए उनके बारे में बहुत कुछ किया जा चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कोई इतने ऐसे लफ्ज़ हैं कि उनकी शख्सियत, उनके बारे में हम उन्हें एक सही तरीके से बयान कर सकें। मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में सबसे आला मुकाम अता करें और हमें सब्र दें, फैमिली को सब्र दें, और माशाल्लाह उनकी सारी फैमिली जब जिससे भी मिले उनकी जो तरबियत, उनका जो अखलाक है वो उनसे भी कोई नजर, तो जो भी उनसे मिला, जिसने भी उनसे मुलाकात की, मेरे ख्याल है कि वो खुश नसीब था। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आया होने के नाते बहुत ही कन्वीनियंट था उनसे मिलना, उनसे बात करना, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला को जन्नत में आला मुकाम अता और हमें उनके लॉस का सब्र अता करे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी शरीफ साहब। मैं चौधरी शरीफ साहब के बाद हमारे नेक्स्ट मुकर्रर हैं काउंसलर नज़ीर साहब, जो स्लो की कम्युनिटी के तवील अरसे से सर्व कर रहे हैं एज ए काउंसलर। हमारे PWA के साथ बड़ा तवील अरसा मुंसलिक रहे, और वो पीर साहब के भी बड़े जो खास लोग होते हैं उनमें उसका शुमार किया जाता है। तो अब इस वक्त जो कैबिनेट के वो मेंबर भी हैं, तो मैं काउंसलर नज़ीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आपको बेहद मशकूर हूँ कि आपने ये मौका दिया, और चौधरी औरंगजेब साहब ने भी। इट्स अ ट्रेजेडी फॉर ऑल ऑफ आवर कम्युनिटी, क्योंकि मुझे भी जैसे राजा लतीफ़ साहब ने कहा कि उनको लगभग 50 इयर्स हुए हैं उनको जानते हुए, उनसे मिले हुए, हमेशा उनको फाइंड किया कि वो बहुत ही मिलसाज और नसीहत देने वाले थे। मैं यकीन करें कि मैं इतना महसूस कर रहा हूँ कि आपने ये मौका दे कि हम गम बांटने का जो आपने मौका दिया, ये अल्लाह ताला आपको जज़ा दे उसकी। क्योंकि वेरी फ्यू पीपल जो होते हैं ना इन जैसे पैदा होते हैं, वेरी फ्यू, एंड हमारी कम्युनिटी के लिए इट्स अ ग्रेट लॉस। जब भी हमें कोई परेशानी होती, कोई एडवाइस लेनी होती, तो उनसे फोन पे बात होती या उनके घर चले जाते, और जहाँ भी मिलते, इट्स अनबिलीवेबल कि उनका कैरेक्टर ऐसा था कि 50 ईयर में उनको चेंज होते नहीं देखा। कुछ लोग होते हैं ना अपने मतलब के लिए, किसी लालच के लिए करते हैं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। तो ये तो ग्रेट लॉस, मैंने जैसे कहा कि एक पूरे हमारे मुल्क के लिए, इलाके के लिए, कम्युनिटी के लिए है। तो ये जो कोविड है, इसका यही नुकसान हुआ है कि हम बैठ के मिल के अपना गम नहीं बांट सकते अपनी फैमिली से, खास दोस्तों के साथ, है ना। एक बार फिर मेरी दुआ है, इंशाल्लाह आप नमाज के बाद उनके लिए दुआ करते हैं, सबके लिए दुआ करने के अल्लाह ताला उनको हाईएस्ट मुकाम दे जन्नत में, और हम बेशक हमें भी उनकी निस्बत वहाँ कहीं भी मुकाम मिल जाए। तो मैं इसी के साथ एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका दिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बशीर अकली साहब बड़े तवील दूर दराज इलाके से हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ, उन्होंने शुरू से ही, बल्कि वो पहले शख्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था। बशीर अकली साहब मैनचेस्टर से, मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बशीर अकली साहब। बशीर अकली साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम तक नहीं पहुंच रही। माइक बंद है उनका जी, डॉक्टर साहब। अच्छा जी, खोल रहे, लेकिन वो मेरे ख्याल में उस तरफ से उनका माइक बंद है। चलो नेक्स्ट हम रायस रावत साहब से, वॉकिंग से रायस रावत साहब, जो कि बड़े करीबी अजीज भी हैं और बहुत उनका दरीना ताल्लुक है पीर करामत हुसैन शाह साहब के, और उनके पड़ोसी भी हैं वहाँ पे सरसावा में, वो उनके करीब तरीन पड़ोसी हैं जनाब रायस रावत साहब ऑफ वॉकिंग। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपने ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डॉक्टर साहब,
चौधरी औरंगजेब साहब बड़ा शुक्रगुजार हैं आपका, ये फंक्शन रेज किया हाजी इकराम साहब की तज़ियत के लिए। आप जैसे आपने बोला वो हमारे पड़ोसी भी थे, हमारे फैमिली मेम्बर भी थे, हमारे घर के तलकात भी थे, और हमारे लिए ये डबल फेलियर हुआ, यानी कि एक तो हम उनके जनाजे पे नहीं शिरकत कर सके, और दूसरा एक ग्रेट पर्सनालिटी हमारे सरसावे में वो इस दुनिया से चले गए हैं। और यहाँ जो आपने पहले सुना होगा कितने कितने काम उन्होंने किए, कितने कितने एडवाइस दिए, कितने कितने कम्युनिटी को कोहेजन दिया। ऐसे ऐसे इंसान बहुत कट होते हैं आजकल, तो हमारे लिए बहुत ही ये कमी पता नहीं किससे पूरी होगी। ये जो हमारे तलकात हैं उनके साथ, ये हमारे बड़े सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौर के हैं। मेरे वालिद साहब मरहूम उनके करीबी दोस्त थे, इंग्लैंड में 1960 में उनके साथ वो यहाँ आए, हम वहाँ वोकी में सेटल हुए, तो हाजी साहब स्लो में थे, तो हमारा आन जान आपको पता है फैमिली की तरह था, और फैमिली की तरह तलकात भी थे। तो जैसे बुहारी साहब ने जिक्र किया कि कितने लोगों के साथ उनके तलकात थे, कितने एडवाइस देने वाले बंदे थे, कितनी शख्सियत थे वो हमारे लिए, ये अभी वक्त बताएगा कि क्या हम ये गमी पूरी कर सकेंगे। तो ये जो अल्लाह ताला करे, ये कोविड के पोस्ट कोविड अगर कोई हम बाद में कोई अरेंजमेंट करें तो ज़रूर उनके लिए हम करना चाहिए, क्योंकि वो एक शख्सियत ऐसी थे कि उनका मैसेज कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। तो मेरे लिए ये बड़ा मौका है कि मैं आप सबके लिए ये बर्डन शेयर कर सकें, और जैसे कांसुल नज़ीर साहब ने बोला और सब दोस्तों ने बोला, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। तो चलो हमें कुछ लेसन लर्न करने चाहिए और उनका मैसेज फॉरवर्ड करना चाहिए। तो इस फोरम के तरीके से मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ। ज़ैद शाह जो उनके साथ रह रहे थे मकान में, वो कह रहे थे कि जो उसे फ़ोन करना चाहते हैं वो उसके इंग्लैंड के नंबर पे रब्ता करें तो तज़ियत पेश करें। तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें भी मौका वो से दिया आपके साथ ये तकलीफ शेयर करने का, अफसोस का, तज़ियत का। मेहरबानी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं तो मैं ऐसे को अंकित की हैसियत से, आपके साथियों ने की हैसियत से मैं एक बात का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। मैं समझता हूँ जो सलाह इत्तेफाक इत्तेहाद के हवाले से अपनी मिसाल आप है पूरे बरतानिया में, इसका जो मरकजी किरदार, जो मरकजी वजह थी, मरकजी रीज़न था, वो पीर कामत शाह साहब की शख्सियत थी। जहाँ पे हमारे कोई इख्तलाफात होते थे कम्युनिटी के अंदर, कोई नफरत, कोई तलखी, कोई डिस्प्यूट, कोई डिसएग्रीमेंट, वहाँ पे बढ़ चढ़ कर बड़ा मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करते। ये एक ऐसी शख्सियत है जो सबके लिए काबिल कबूल थे, डिस्पाइट कोई हमारा कोई तफरीक कह लें, कोई तकसीम कह लें, वो मजहब के बुनियाद पे कह लें, वो पार्टी की बुनियाद पे कह लें, वो सियासी जमात के हवाले से कह लें, वो किसी भी बरादरी इलाके के हवाले से कह लें, तमाम जो तबकात हैं कम्युनिटी के, जो माशरे के हैं, वो उनकी इज्जत से, दिल से इज्जत और एहतराम करते थे। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी शख्सियत है जिसकी वजह से ना सिर्फ सलाह आज हमें उनकी कमी महसूस हो रही है, बल्कि पूरा बरतानिया में और पूरे आज़ाद कश्मीर में उनकी कमी महसूस की जा रही है। तो ऐसी शख्सियत यकीनी तौर पर एक माशरे और एक मुल्क और कौम का असासा होती हैं। जी चौधरी करामत साहब जी हमारे जो साबिक सदर हैं पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के, इनकी बड़ी खदमात हैं, और पीर साहब से इनकी बड़ी अकीदत का रिश्ता है, प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है, बड़े अच्छे से पीर साहब के साथ उनका एक वर्किंग रिलेशनशिप भी रहा है। तो मेरी गुजारिश होगी जनाब चौधरी करामत साहब से कि वो अपने हाथ का इज़हार फरमाएं। जी चौधरी करामत साहब। टोपी जी नजर आ पाई जी ये सामने जी चौधरी करामत साहब अनम्यूट करो अपने, बस म्यूट अनम्यूट करें। ठीक है नहीं भाई चौधरी करामत साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? उनका म्यूट पे है, अनम्यूट करना पड़ेगा उनको अपना माइक। वो आप देखें उनकी तरफ से या हमारी तरफ से? नहीं वो खोलेंगे आप एज एडमिन भी उसको अनम्यूट कर सकते हैं, अगर वो नहीं कर सकते एज जो भी एडमिन है वो अनम्यूट कर दें उनको। ये देखें जी आप हफीज साहब, आप मैं उनको कह रहा हूँ आज टू अनम्यूट। जी आवाज आ रही? जी आपकी ये करामत साहब की आवाज आई थी ना अभी? जी चौधरी करामत साहब, ओवर टू यू। उन्होंने फिर अनम्यूट कर दिया है, उन्होंने फिर कर दिया। ये दोबारा अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। आपने किसी कोई ना हिलाया। जी बोले अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 55-56 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ उन्होंने एक दो गम जब उन्होंने वाला साहब वफात पा गई तो वो बड़े परेशान कुछ हासा रहे। उसके बाद सदक हसन शाह साहब उन्होंने एक ही पाए सन वो फौत हो गए और उन्होंने नाल भी उन्हें बड़ा दुख था। तो कि शाह साहब ने सन पता है औलाद नहीं सी, सिर्फ बेटी है अपने सदक शाह साहब ने। कि मैं समझा कि जितने भी असी लोग ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਦਰਲੀ ਇੱਕ ਆਕੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ को तो है कि आके हर ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦਿਲ ਵੀ ਆਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਰੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। तो ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बराबर ਦਾ कोई बाकी है कि मैं आज दिन तक मेरी 70-75 साल हो गई ऐसा इंसान मैं नहीं देखा कोई। उन्होंने तारीफ करो तो फिर बड़ा वक्त चाहिए होना उन्होंने तारीफ करना है। तो इशा साहब तुसी हर वक्त साढ़े दिल विच हो और मैं तो इस सोच के पूरा स्लो ही यतीम हो गया। मैं इस 10 मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं इस पर इत्फाक करना हूँ। अल्लाह ताला जन्नत फिरदौसी बहुत शुक्रिया चौधरी कामत साहब। यकीनी तौर पर आपने बजा फरमाया कि आज पूरा इस्लाह सोगवार है, हम सब अफसरदा हैं, सब परेशान हैं। पीर साहब के इंतकाल पर यकीनी तौर पर एक आजमाइश हमारे लिए एक बड़े रहमत का एक रहनुमा का एक जैसा कि आपने बजा फरमाया कि वो हमारे लिए एक फादर फिगर थे। ऐसी बड़ी शख्सियत का अचानक चले जाना यकीनी तौर पर एक बड़ी आजमाइश है, एक बड़ा तकलीफ दे मरहला है। दुआ है अल्लाह ताला हमें भी इस मुश्किल और तकलीफ के मरहले से निकाले और पीर साहब की कामल बख्शिश फरमाए। यकीनी तौर पर जब से पीर साहब का इंतकाल हुआ है तो बड़ी तादाद में लोग मुझे भी फोन कर रहे हैं कि मैंने पीर साहब के हवाले से एक सोशल मीडिया पर और एक जंग अखबार में उनकी शख्सियत के हवाले से एक आर्टिकल लिखा तो उस पर लोगों ने मुझे भी फ़राज़ ताज़ीम पेश किया। और सब लोग अफसरदा हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं और ऐसा हर बंदा महसूस कर रहा है कि जैसे उसका अपना ज़ाती फैमिली का फर्द इस दुनिया से चला गया है। यही के लिए उनकी खिदमत का इतराफ़ है, उनके मुस्बत किरदार है जो हमारी कम्युनिटी के लिए है, तामीरी किरदार है, उसकी एक्नॉलेजमेंट है कि आज हर शख्स अफसुदा है, परेशान है, गमगीन है, उनके लिए दुआ कर रहा है। तो यकीनी तौर पर डॉक्टर महमूद रियाज साहब की कावज़ से आज हमने इस चीज़ का एहतमाम किया कि ताकि हम अपने गम में थोड़ी सी कमी ला सकें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह की महफिल से जो कोविड-19 की वजह से हम इकट्ठे तो नहीं हो सकते, आज की जो महफिल है हम जब इकट्ठे उनकी याद में बातें करेंगे, उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे तो हमारे काम में भी कोई कमी आएगी। तो नेक्स्ट हमारे जनाब मैं गुजारिश करूंगा राजा अयूब साहब मुझे नजर आ रहे हैं। ये हमारे साबिक सदर पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के और जो हमारी जामिया मस्जिद स्टॉक लैंड उनके भी एक मरकजी ट्रस्टी हैं। तो मेरी गुजारिश है जनाब राजा अयूब साहब से वो अपने ख्याल का इज़ाफ़ा फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी भाई सुन रहे हैं और जिन लोगों ने क़िबला हज़रत शाह साहब की ज़िंदगी पर नज़र डालते हुए उनके कारनामों का जिक्र किया, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हक अदा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल हकीकत है। तो अल्लाह ताला के पैगम्बर ने फरमाया कि एक बहुत मारूफ दवा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम दुनिया में आए हैं और हम सब ने जाना है। शाह साहब शान से ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से गए और सबसे बड़ी जो उनकी ज़िंदगी की मिसाल है, जैसे सब लोगों ने कहा कि वो एक सुलहकुन इंसान थे, हमेशा सुलह कराते थे लोगों की, अच्छा दर्स देते थे और जो आदमी उनसे एक बार मिला वो बार बार मिलना चाहता था। क्योंकि जिस तरह बहुत सारे मुकर्रीन ने फरमाया, स्लो में खास कर रहने वाले, कि हम क्यों तकरीबन 50 साल से ज़्यादा अरसा तक शाह साहब की छतरी के नीचे गुजारे हैं और कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करते रहे। इसलिए
उनकी जो कमी है वो पूरी नहीं होगी। लेकिन हम उनके लिए ये जो काविश जनाब डॉक्टर रियाज साहब और औरंगजेब साहब और जनाब गुलाम दस्तगीर साहब ने की, हम इनके भी ममनून एहसान हैं, इसलिए कि बिल्कुल ये हालात ऐसे हैं कि वाकई हम मिल नहीं सके। कितनी बदकिस्मती है हमारी, इतनी बड़ी शख्सियत हमसे जुदा हो गई तो हम एक दूसरे के साथ गले लगकर अजियत नहीं कर सकते, अपना दर्द नहीं बांट सकते। ये अफसोसनाक बात है। लेकिन इसके बावजूद इन भाइयों की, इन दोस्तों की उनके बात कर रहे हैं। और जैसा कि सब दोस्तों ने फरमाया कि शाह साहब क्योंकि स्लो में सबसे ज्यादा अरसा उन्होंने गुजारा, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट भी स्लो वालों को मिला। जिस शहर, जिस गांव से शाह साहब का ताल्लुक है, जब से उनकी वफात हुई उससे पहले से भी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके साथ बातें होती थी, तो सभी लोग शाह साहब की इस बात का एतराफ करते हैं कि वो मुनसब मजाज थे। राय साहब अगर आप अपने कैमरे को थोड़ा दुरुस्त कर लें, आपका कैमरा दूसरी तरफ जहाँ पहले था, ये ठीक है जी, बिल्कुल आप अपनी बात को जारी रखें जी, बिल्कुल ठीक है। तो जाहिर है कि जहाँ वो पैदा हुए वहां भी उन्होंने जबरदस्त नाम कमाया, और जहाँ जिंदगी के 50 साल से ज्यादा अरसा गुजारा वहां भी लोग आज उनका वुजू करके नाम लेते हैं। क्या सच्ची बात यह है कि हमारे लिए, हम जो जिंदा हैं, हम जो आज बात कर रहे हैं, हमें जो लोग सुन रहे हैं, हमारे लिए उनकी जिंदगी सब कमोज जिंदगी है। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें उनसे जो सीखा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं जनाब सैयद अली अब्बास साहब और इस खानदान, पूरे खानदान से तज़ियत करता हूँ, और ये उनका नुकसान नहीं है। सच्ची बात यह है कि ये इस्लाम का नुकसान है, पूरी कम्युनिटी का नुकसान है, पूरी बरतानिया का नुकसान है, और शाह साहब के जो मदा है वो पूरी बरतानिया में भी है। दोस्त से औलिया थे, एक वली थे वो, जिस तरह लोगों से मिलते थे तो हौसला हो जाता था, बीमार जब उनके पास जाता था तो शफा लेकर आता था। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका मुझे दिया जा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब राजा अयूब साहब, आपने अपने बेहतरीन अंदाज में उनकी शख्सियत का अदा किया। मैं आपका भाई मशकूर हूँ। आप अपने पीर साहब के हवाले से अपनी मुलाकात हमसे शेयर की। मैं जनाब हमारे जो अगले मेहमान हैं लुटन से साबिक मेयर ऑफ लुटन काउंसलर रियाज भट्ट साहब, इन्होंने पीर साहब की शख्सियत के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरात में, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे भी, मुख्तलिफ खबरात में इन्होंने कॉलम भी लिखे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी जनाब रियाज भट्ट साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं डॉक्टर महमूद रियाज साहब और चौधरी औरंगज़ेब साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बरतानिया के इंतकाल के बाद उनके लिए ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। मैं समझता हूँ कि जो ये ताज़ियती प्रोग्राम है ये हमें मिल बैठ के करना चाहिए था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये नहीं हो सका। तो मैं समझता हूँ कि फिर भी आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लेकर हम सब लोगों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया। बात करूँगा 2-3 मिनट अगर इजाज़त हो तो। मैं उन तमाम पार्टिसिपेंट में आज़ाद जलाल साहब, अली अब्बास साहब, राजा अयूब साहब, करामत साहब, सखावत साहब, शबान साहब, चूँकि मैं 5 बजे से पूरे मैंने वो जो लिंक दिया था उस पर हमने उस पर रब्ता किया, तो मैं और शाबान चौधरी और सखावत राजा काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे। तो फिर मैं बाद में पता कि कुछ मामलात हैं। फिर भी मैं आपका और दस्तगीर साहब सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया। मैं चूँकि डॉक्टर साहब और औरंगज़ेब साहब से पहले बरतानिया में आया, तो मेरे एक भाई थे, मेरे बहनोई, नजर मोहम्मद भट्ट नाम था, वो पहलवान थे। तो ये जो पहलवानों की
जी मेरी आवाज आ रही है जलाल साहब? आ रहे जी आ रही है। जी जी शुक्रिया। तो मैं जब वटफोर्ड में था तो ये जो सादात थे ग्लोइंग के, इनका नाम मैंने सुना तो कहने लगे जी बड़े बहादुर सैयद हैं। तो मुझे बड़ा इश्तियाक लगा। अभी फिर अल्लाह ने ऐसा किया कि हम आस्ता आस्ता सियासत में आए, कि सारे मामला तो फिर इन भाइयों से हमारे तलकात बन गए। फिर ऐसे तलकात बने कि हम एक ही कश्ती के सवार हो गए। तो मैंने उनके भाई सैयद खादम हुसैन शाह साहब मरहूम को भी देखा, फिर पीर साहब की को भी देखा। क्योंकि आज प्रोग्राम जो है वो पीर साहब के हवाले से है, तो मैं फिर अब पीर साहब की बात करूंगा। तो मैंने देखा ये नहायत ही खूबसूरत हसीन शक्ल वाले सैयद, और फिर उसके ऊपर ये जिस तरह दोस्तों ने बात की कि वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि हम इस बात का अंदाजा ना कर सके। चलते चलते यानी बहुत से मामला थे, फिर हम उनसे मुलाकातें भी होती थी। उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, फिर उसी जमात के इस झंडे को उन्होंने थामे रखा। कभी उनके पाँव में कोई यानी लर्जिश नहीं आई। मैं समझता हूँ कि ये बात है। बहुत से मामला हैं, मैं हमने उनसे बहुत सीखा। मैं जब मुझे ओहदा मिला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर साहब को सारी बात का पता है, तो उन्होंने भी हमारी रहनुमाई की। और मैं समझता हूँ कि हमने बहुत कुछ इन बुजुर्गों से सीखा। ये यानी एक यूनिवर्सिटी के दर्जे की हैसियत रखते थे ये लोग। उनमें बहुत से लोग लेकिन शाह साहब में सफ़े अव्वल में थे। और शाह साहब का फिर बाद में जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं तो ये समझ नहीं रहा था। मैंने समझा शायद वो इधर इंग्लैंड में ही है, लेकिन मेरे एक अजीज ने बताया कि वो घर गए, 8-9 महीने उधर रहे, दोस्त अहबाब से मुलाकात, रिश्तेदारों से। जिस तरह एक साहब ने बताया कि उनके औलाद नहीं थी, तो ये बात मैं समझता हूँ कि दुरुस्त है, हकीकी बात है, ये हकीकत है। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ कि सब लोग उन्हीं के अजीज थे। ये रगजेब चौधरी साहब, ये जिस तरह आपने यानी बहुत खूबसूरत कालम उनकी शख्सियत के हवाले से लिखा, फिर आपने ये सारा काम किया, तो ये पर अपने अजीज ही करते हैं ना, बाहर के लोग नहीं करते। तो हम सभी उन्हीं के थे। और मैं यानी इस हवाले से बहुत खुशबख्त हूँ कि फरवरी में हमें वहाँ उनके यहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। तो हमने उनकी एक तो ज़ियारत करनी थी, फिर उनकी मजाज परसी करनी थी। तो वहाँ जब उनके घर पहुँचे तो खुद आकर दरवाज़ा खोला। तो मैं ये मेरे लिए बड़े एजाज़ कि मेरे साथ मेयर लूटन थे उस वक़्त, और प्रोफेसर बहुत सारे लोग थे। तो मैं मेरे साथ ही आकर बैठ गए। तो मेरे 5 बार उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर बात की मुझसे। तो मैं फ़ील कर रहा था कि ये देखें आप, मुझे मेरे लिए तो बड़े एजाज़ की बात है कि इतनी बड़ी उम्र के बड़े आदमी और बड़ी बात कर रहे हैं। तो बड़ी बातें हुई उनसे, यानी जो हमने ज़िंदगी में जिस तरह हम उनसे मिलते रहे, उनसे बातें होती रहीं। तो फिर जब हम वहाँ से बाहर निकले, तो फिर वो बाहर आ गए। तो मैंने उनसे कहा कि पीर साहब आप बाहर ना, आप बुज़ुर्ग हैं। तो कहने लगे आज भट पता नहीं है यार, मुलाकात होगी या नहीं होगी। तो फिर बात अल्लाह अंदाज़ा करें ना, कुछ लोगों को ये यानी अल्लाह की तरफ से ये बात तो हो जाती है, पता चल जाता है कि वो नहीं मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पीर सैयद करामत हुसैन शाह गिलानी साहब जो हैं, वो न सिर्फ यानी आज़ाद कश्मीर में बल्कि बरतानिया और पाकिस्तान में भी इतने ही मकबूल थे। फिर उनकी जो रूहानी बात थी उस हवाले से भी आपने भी बात की। मैं समझता हूँ कि उनकी रूहानियत पर देखें ना, जो बात वो करते उसके पे खड़े रहते। फिर आप बड़े खुशबख्त लोग हैं कि उन्होंने ज़्यादा अरसा स्लो में गुजारा। और जिस तरह आपने अपने कॉलम में लिखा कि वो उनकी वजह से आप लोग एक यानी तस्बीह के दानों की तरह एक जगह रहे। तो मैं समझता ये बड़ी बात है। उनके लिए तो हमारे पास अल्फाज नहीं है। अब मैं थोड़ा सा जज्बाती भी हो रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाए। और आमीन। मैं समझता हूँ कि हमें भी उनके राह जो उन्होंने राह छोड़ी है, जो हमें उन्होंने सबक दिया है, हमें उस पर चलने की ज़रूरत है। तो मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ये काम करके हमें मौका दिया कि हम पीर साहब की शख्सियत बात तो नहीं कर सकते उनकी, वो बड़ी शख्सियत है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ये जो एहतमाम किया, मैं समझता हूँ ये काबिल रश्क है। और आप लोग खराज तहसीन के हकदार हैं। और आप ही की वजह से चौधरी करामत साहब को भी देखा, फिर राजा लतीफ़ साहब को भी देखा, फिर हमारे जो बड़े सीनियर रहनुमा हैं राजा अयूब साहब को भी देखा। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बात होती है, किसी की कोई रूह ऐसी होती है जिसकी रूह की वजह से लोग आपस में मिल जाते हैं। तो मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये इस बात का ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर उनके हवाले से कि जब भी कभी हमें मौका मिलेगा कोरोना के बाद, तो हम एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे और उस प्रोग्राम में हम उनकी बातें करेंगे। और बहुत सी बातें हैं जो, चूँकि अभी तो नया-नया मामला है, तो एक आखिर में ये बात करूँगा कि मैंने बड़ी तफ़सील के साथ उनकी फ़ॉलो किया है। तो एक बड़ा जनाज़ा था वहाँ सरसावा में, और इतना बड़ा जनाज़ा फिर जिस तरह पीर साहब को उनके जनाज़े को ले जाया गया, मैं समझता हूँ कि जो मैं ये कोई मज़हबी बात नहीं करना चाहता किसी की, लेकिन जो हमारी रवायात हैं उसके मुताबिक यानी ऊँची आवाज़ में कलमा शहादत पढ़ते-पढ़ते उनको ले जाया गया। फिर उन्हीं के अज़ीज़ हैं कलाम शाह साहब बंडोर शरीफ वाले,
वो भी एक बड़ी मजहबी और रूहानी शख्सियत है। उन्होंने उनका जनाजा पढ़ सुनता हूँ, ये हमारे लिए एजाज की बात है कि हमारे बुजुर्गों के जनाजे भी हमारे वो लोग पढ़ाते हैं जिन लोगों को अल्लाह ताला ने कुछ दिया हुआ है। तो मैं अली अब्बास साहब आपसे और आपके पूरे खानदान से एक बार फिर ताज़ियत करता हूँ और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। तो मैं इसी पे बात खत्म करता हूँ। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया रियाज भट्ट साहब, आपने अपने बात का आज़ार करके और तमाम दोस्तों को एक्नॉलेज करके जिनसे आपकी बड़े अरसे के बाद आज मुलाकात हुई है, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने इस दुख की घड़ी में हमारे साथ शामिल हुए। तो मैं हमारे अगले मुकर्रर हैं तहरीक इंसाफ बरतानिया के मरकजी रहनुमा साबिक सेक्रेटरी जनरल साउथ जोन जनाब आजाद जरार साहब, जो पीर साहब के इन दिनों में बहुत पड़ोसी भी थे और इनका बड़ा एक अरसे से पीर साहब के साथ ताल्लुक भी था, और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पीर सैयद करामत हुसैन शाह साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मुकाम आमीन। और अल्लाह ताला गरीब के रहमत करे, उनकी कब्र को जन्नत के बागों का एक बाग बनाए। दिल बहुत रंजीदा है। चौधरी करामत साहब की गुफ्तगू के बाद मैं ये सोच नहीं रहा था कि मैं बोल पाऊंगा, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको हौसला दे। हम सारे लोग उनकी शख्सियत जो एक्सप्लिसिट पर्सनालिटी थी उनकी, एक मजहबी रूहानी इंसानी, उनमें हर वो रूप मौजूद था जिसको देखकर हम महजूज होते थे। उनके चेहरे पर जो स्माइल थी, जब भी मुलाकात होती हाथ चूमते, जब भी देखते कभी माथे पे प्यार देते। आजाद जिराल इतनी देर के बाद क्यों मिला, सब लोग पूछते। राजा मेहरबान साहब के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई थी, उनके साथ उनका पूछते, उनकी फैमिली का, मेरी फैमिली का, जिन जिन लोगों के साथ मुलाकात होती उन सब से उन सब का हाल पूछते। अगर घर पे जाओ तो इतना प्यार मोहब्बत, अपने खानदान फैमिली की तरह, अपने बाप की तरह। हम उनसे जुदा होकर उनकी जो, ये तो एक हकीकत है, लेकिन उनकी जो मौत है उसने एक बहुत बड़ा गैप छोड़ा है हमारे दरमियान। और मैं तो यकीन जाने कि इतना रंजीदा अफसरदा हूँ कि किस तरह बात करूं। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब आपने, गुलाम दस्तगीर भाई ने, चौधरी रंगजेब साहब की मैं क्या बात करूं, ने इतना खूबसूरत कालम लिखा, इतनी खूबसूरत रिपोर्ट बनाई, और वो सारे अल्फाज उन्होंने अपने प्रोए उसमें कि जो उनकी शख्सियत का पहलू थे उसमें वो उनमें वो सारी चीजें मौजूद थी। इस्लाम के अंदर हम जितने भी लोग हैं सारे उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे। इन सब का जो कंसर्न है, इन सब की जो फीलिंग्स है, मैं पहले मेरी ऑडियो ऑन नहीं थी तो मैं सोच रहा था कि शायद मेरी बात ना हो सके, तो मैंने एक मैसेज भेजा है, सबको भेजा है कि शायद मैं बात ना कर सकूं, लेकिन मेरी ये फीलिंग्स है और आई नो कि आप लोगों की क्या फीलिंग्स है उनके बारे में। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि डॉक्टर साहब हम सब को अल्लाह ताला यूनिटी दे। हम सब इसी तरह, हमारे जितने भी हम सब दोस्त अहबाब, हमारी कम्युनिटी, हम मुसलमान हैं, जब भी कोई इस दुनिया से जाए तो इसी तरह की फीलिंग्स हम सब के लिए, इंक्लूडिंग, क्योंकि हमने एक दिन जाना है और ये फिर इस वक्त जो वबा है पूरे इसने लपेट में लिया हुआ है, हमारी मुलाकात नहीं हो रही एक दूसरे से। आज ये सबको देखकर इस तरह महसूस हो रहा है कि पता नहीं कितने अरसे से हम जुदा हैं। राजा अयूब साहब को देखकर इतनी खुशी हो रही है, राजा लजीर साहब, नजीर साहब, शरीफ साहब, ये सारे रोजाना के बेसिस पे मिलते थे।
लेकिन अब ये इतना गैप हो चुका है कि हम काफी दूर हो चुके हैं। आपकी मेहरबानी है कि आपने ये जूम की मीटिंग करके, ये ताज़ियती रेफरेंस करके हमको मौका फराहम किया कि हम एक दूसरे से बात कर सके, अपने दिल की जो ये आवाज है इसको बाहर आप एक दूसरे तक पहुंचा सके। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पीर सैयद करामत हुसैन शाह साहब को सहमे सुखने दिल में जो हमारे साथ प्यार मोहब्बत करते थे, उनको अल्लाह ताला गनी करामत करे और जन्नत में आला और अरफा मुकाम हासिल करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आजाद जलाल साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं रियाज भट्ट साहब के लिए खास दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, वो हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा हमेशा हमारा असासा है, ये तमाम जितने लोग हैं सब हमारा असासा है। तो मैं इसी पर इंशाल्लाह इत्तेफाक करता हूँ। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद जलाल साहब। तमाम सारे अख्ताम पर दुआ होगी, लेकिन उससे पहले हमारे PWA इस्लाह के सदर जनाब राय शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनको दावत दे रहा हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का आगाज करें। जनाब राय शबीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं वहाँ हज़रात के सुनी है बातें और बड़ा ही महसूस किया है कि हर बंदा ही इस दुख दर्द में शामिल है और परेशान है। अल्लाह ताला उनको पीर साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इस्लाम के लिए स्पेशली कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा लॉस है। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरी जब भी उनसे मुलाकात हुई इतने प्यार से मिलते थे, मैं क्या बताऊं आपको। और मैंने जिस से भी बात की ना अभी रिसेंट दिनों में, तो हर कोई कहता है मुझसे बहुत प्यार करते थे, हर कोई यही कहता है मुझसे बहुत प्यार करते थे। ये उनका इनके प्यार का इनके सबूत है कि हर कोई उनके बारे में इनके इस तरह की बातें कर रहा है। और मुझे जब हमने सेंटर खरीदा PWA का, तो मुझे बड़े प्यार से गले लगाया और मुझे कहते हैं कि ये तुम्हारे ही काम था, तूने किया है, मैं बड़ा खुश हूँ तुम पर। और इस बात की गवाही हमारे साबिक सदर साहब करामत साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने ऐसा लफ्ज मेरे लिए कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता। कि कहते हैं कि ये जो बुलंदियों पर तुम्हें अल्लाह ताला लेकर गया है ना, ये तुम्हें अल्लाह ताला इसका अजर देगा जी। तो मैं यकीन करें कि कुदरती तौर पर जब भी मैं उनसे मिला, इस तरह दिली सुकून महसूस होता था जैसे मेरे अपने फादर बहुत ही करीबी हैं जी। इतना उन्होंने प्यार दिया हर किसी के, कम्युनिटी का काम उन्होंने बहुत ही जो है ना, हर दफा जो है ना जब भी उनसे बात की उन्होंने रहनुमाई हमारी की। और मेरे ख्याल में जितने भी हमारे इस्लाम में और बाकी भी जो लोग हजारों के हिसाब से हर बंदा उनको मिस करेगा, क्योंकि इस तरह के बंदा मेरे ख्याल में शख्सियत जो है ना वो बहुत कम आपको जो है ना जिंदगी में दोबारा मिलेगी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और स्पेशली मेरे डॉक्टर साहब को, डॉक्टर रियाज साहब चौधरी औरंगजेब साहब और इमाम तस्लीम साहब के लिए बड़ी काविश है कि इन्होंने सबको इकट्ठा किया, क्योंकि आजकल का ये जो कोविड का मसला चल रहा है, अल्लाह ताला इससे महफूज फरमाए सबको। हम बल्कि प्रोग्राम तो यही था कि एक दिन सारे जब ये कवर होगा तो इंशाल्लाह मिल बैठकर सारे ये दुख शेयर करेंगे। इंशाल्लाह उनकी ताज़ियत के लिए जो हम इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और उनके जितने भी लायकीन हैं और रिश्तेदार उन सबको सब्र और जमील अता फरमाए। पाकिस्तान वर्ल्ड इस्लाम राजा शबीर साहब, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अंदाज में पीर साहब की शख्सियत के हवाले से उनकी अक्कासी की। मेरे आखिरी जो मुकर्रर हैं हमारे, जो आज के मेज़बान भी हैं, मेहमान भी हैं, पीर साहब के बड़े अच्छे दोस्तों में हैं, उनके बेटू की तरह थे, उनके बड़े करीबी अजीज़ों की तरह थे। बड़ी अकीदत तो बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है। मामूद रियाज साहब को खिताब देने से पहले मैं एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। आज से तकरीबन
चंद माह कबल डॉक्टर मामूद रियाज साहब ने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा यार मेरी बड़ी ख्वाहिश तारी है, मेरी काफ़ी दिनों से मेरे अंदर ख्वाहिश थी कि मैं पीर करामत शाह साहब से हमारी को मुलाकात हो, काफ़ी अर्सा हो गया, काफ़ी अर्सा बीत गया इनसे हमारी कोई बातचीत नहीं हो सकी, चलो पीर करामत शाह साहब से मिलने के लिए चलते। तो हम पीर साहब के पास गए, मैं और डॉक्टर मामूद रियाज साहब को कम से कम तकरीबन 1.5-2 घंटे वहाँ पे उनके साथ वक्त गुजारा। उन्होंने बड़ी हमारी इज्जत अफजाई की, बड़ी हमारी खातिरदारी की, हमें वो उन्होंने रिसीव किया, बड़ी मोहब्बतें बांटी, बड़ी दुआएं दी। वो शायद हमारी आखिरी मुलाकात थी जो मैं जिनकी बारी याद भी उनकी दिलाती रहेगी और मैं रुलाती भी रहेगी। वो उनकी जो बड़ी बड़ी एक अहम खूबी थी, वो जहाँ लोगों को अच्छी नसीहत करते थे, प्यार मोहब्बत देते थे, एडवाइस करते थे, वहाँ पे किसी की कामयाबी पर बड़ा फख्र और खुशी भी महसूस करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है जब डॉक्टर मामूद रियाज साहब पहली मरतबा वज़ीर एमएलए बने और फिर वजीर बने तो उन्होंने बड़ा खुशी और मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा यार औरंगजेब, मुझे अक्सर औरंगजेब जी करके मुखातिब करते थे, वो कह रहे यार ये मामूद रियाज ये मेरे शहर का मान है, ये मेरे शहर का फख्र है, इसने आज़ाद कश्मीर की वजारत सलाह में लाई, ये वज़ीर एमएलए बना, इस पर हमें फख्र करना चाहिए, इसका साथ देना चाहिए। वो हर बंदे की खुशी में अपनी खुशी महसूस करते थे, उसकी हौसला अफजाई करते थे, उसकी इज्जत अफजाई करते थे। ऐसी शख्सियत यकीन जाने बड़ी नापायद हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमें उनका कोई नामुल बदल दे जो हमारी रहनुमाई भी कर सके, हमें आगे भी लेके जा सके। तो यकीनी तौर पर उनकी जो उन पर अगर बातें की जाएं तो इस पे तो घंटों दरकार हैं। तो अभी मेरी गुजारिश होगी जनाब मामूद रियाज साहब से, आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर बरक़ियात मामूद रियाज साहब, वो अपना इज़हार ख्याल फरमाएं। मामूद रियाज साहब। बहुत शुक्रिया जी तमाम साइमिन का, तमाम पार्टिसिपेंट्स का आज आप सब ने शिरकत की। जो लोग आज इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके उनमें चौधरी शाबान साहब सम हो लिंक की वीकनेस की वजह से या किसी रीज़न की वजह से उन्होंने आना था, वो हमारे साथ बशीर अजमेर साहब मौजूद थे, लेकिन सम हो मेरे ख्याल में उनकी तबीयत भी कोई ठीक नहीं थी तो वो ऑफ हो गए। मेरे ख्याल में वो उनका वॉइस हम तक नहीं पहुँच रही थी। इसी तरीके से बहुत सारे और साथियों ने हमारे साथ शामिल होना था जो नहीं हो सके, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आज़ार ख्याल किया, जिसमें हमारे बड़े इंतहाई मुतर्रक कम्युनिटी के आब्दुल अजीज शख्सियत जनाब राजा इसाक खान साहब जो सुलाव के बड़े जानी मानी शख्सियत हैं, वो आजकल कोरोना वायरस के में मुब्तला हैं और उनकी गुज़श्ता वीक जो है वो उनकी बेटी को कोरोना वायरस हुआ था और आज मुझे इत्तला भी दिया कि उनको भी कोरोना वायरस से वो में मुब्तला है। और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से तैयाब करे। वो एक बड़ी जान है तहरीक आज़ादी कश्मीर की, इस्लाह से बड़ा भरपूर हमेशा पार्टिसिपेशन और हर एक्टिवली वो हमेशा पेश रहते हैं कम्युनिटी के कामों में। और पीर साहब के भी बड़े खास मरीजों में वो शामिल थे कि जो हमेशा उनको हर दफा हर जगह पे बड़ी ताबेदारी करते थे और उनका ख्याल रखते थे। तो आज वो हमारे साथ शामिल नहीं हो सके। मैं इस पे तमाम साहिबीन से कहूँगा और पीर साहब से भी कहूँगा कि वो आखिर में जब पीर साहब के लिए दुआ हो तो उनकी सेहतयाबी के लिए राय साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। हमारे बहुत सारे प्यारे दोस्त ताल्लुक वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग इस कोरोना वायरस से जो है वो यहाँ बरतानिया की कम्युनिटी से, यहाँ की स्लो की कम्युनिटी से और बड़े हरदिल लोग जो है वो यहाँ से रुखसत हो गए, जिनके हम जनाजों में शामिल नहीं हो सके, जो हम पार्टिसिपेशन नहीं हो सके कर सके। फिर इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हमारे मुजफ्फराबाद से जनरल मोहसिन कमाल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोहसिन कमाल जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी रहे, वो भी उनकी डेथ भी कोरोना वायरस से हुई है रिसेंटली, अभी कोई फ्यू डेज पहले। इस तरीके से और बहुत सारे लोग, मतलब इनकलाबी साहब मुसफरा कुडेटा में जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, लेकिन वो उनकी जो वफात है वो चाहे कि लेटर हुई कोरोना के बाद हुई है, लेकिन वो भी पहले कोरोना में मुब्तला रहे और फिर वो भी उनकी डेथ जो है वो उससे हम अभी रिकवर नहीं हुए थे। तो हमें ये इतला मिली कि पीर साहब हमारे पीर इकराम हुसैन शाह साहब भी रुखसत हो गए। बहुत अजीम और शान और बड़े आला शख्सियात के मालिक जो पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में और यहाँ बरतानिया की कम्युनिटी में जो हर शहर के अंदर से जिन लोगों का नाम लिया जा सकता है, बहुत सारे लोग मौजूद है, लेकिन चूंकि वक्त हमारे पास कम है तो इस पर मजीद हमारी बात नहीं सकी। मैं मुख्तसरन पीर साहब के हवाले से उन लोगों ने जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में कुछ पैगामात भेजे हैं, जिसमें हमारे फॉरवर्ड में अफसर शफीक साहब ने पाकिस्तान से टेलीफोन करके तहजीब का आज़ार भी किया और उन्होंने कहा कि मैं
میں جو موجود ہوتا تو وہ چونکہ اپنی خالہ کی جو ہے وہ باڈی کے ساتھ پاکستان گئے ہوئے تو وہ انہوں نے وہ پیر صاحب کے گھر بھی گئے وہاں سے سوار میں وہاں جا کے تعزیت کی، لیکن ان کو میں نے جب لنک بھیجا تو انہوں نے مجھے فون کر کے بھی تعزیت کا آغاز کیا۔ اسی طریقے سے راجہ اسحاق صاحب کی جو میں نے پہلے بات کی، انہوں نے اس بات پہ تعزیت کا آغاز کیا، اور مختلف برطانیہ کے مختلف اور شہروں سے بہت سارے لوگ، چودھری اسلم آزاد صاحب نے برمنگھام سے تعزیت کا آغاز کیا ہے، اور راشد بٹ صاحب نے پاکستان سے ٹیلی فون کر کے ہمارے فارمر میئر آف سلو انہوں نے تعزیت کا آغاز کیا ہے۔ محترم عارف قادری صاحب، عارف مناس قادری صاحب جو واٹر بیچ پر رہتے ہیں، انہوں نے جو وہ تعزیت کا آغاز کیا پیر صاحب کے حوالے سے۔ تو یہ تعزیت کا سلسلہ جو ہے وہ بھرپور جاری ہے، اور یہ پھر جو علی عباس گیلانی صاحب ہیں، یہ علی عباس بخاری صاحب ان سے کہیں گے کہ یہ دعا بھی کریں اختتام کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور تمام لوگ جو پیر صاحب سے جدا ہوئے ہیں، اور آج اس محفل کے اندر جو اموشنل انداز میں لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں کہ ہماری کمیونٹی کے اندر جو اتحاد یکجہتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے احترام کا رشتہ ہے، وہ ہمیشہ جو ہے اس کو معروض خاطر رکھا گیا ہے، اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اس پہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ پیر صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جاؤ آپ کو اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ زندہ رکھے اور عزت کے ساتھ موت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پیر صاحب جو ہمیشہ لوگوں کے لیے اس طرح کی دعائیں کرتے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا باعزت زندہ رکھا، اور ان کے جو انجام ہے وہ بھی بڑا باعزت ہوا، وہ ان کو کلمہ نصیب ہوا لوگوں کی موجودگی میں، پھر ان کی رخصتی اتنے شایان شان طریقے سے ہوئی کہ پاکستان میں اگر آپ نے وہ دیکھا ہے کہ ان کے نماز جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ، اور ہر جگہ پہ جس طرح کے کسی نے کہا کہ شاید پیر صاحب کے، میں کہتا ہوں کہ پیر صاحب کے ہزاروں بیٹیاں بیٹے آج جو ہے وہ دنیا میں موجود ہیں جو ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ صرف دعائیں نہیں کر رہے بلکہ دعائیں ان کے لیے دل سے نکل رہی ہیں، اور اس اعتبار سے جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ پیر صاحب کو جس قدر بھی وہ ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے بھائی پیر صدق حسین شاہ صاحب جن کا مرحوم جن کا ذکر کرنا میں کہوں گا ہر اعتبار سے کہ جس شخص کو میں نے دیکھا کہ کوئی بیٹا بھی اتنا تابعدار اور فرما بردار نہیں ہو سکتا کہ جو کہتے تھے کہ لالا جی جو کہہ دیں بس اس پہ آمین کرنی ہے، وہ ہمیشہ ان کی تابعداری کی، اور وہ وقت سے پہلے ان سے چلے گئے کہ ان کا ان کی پیر صاحب سے بڑا دکھ تھا، اور ان کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے درجات بلند کرے۔ تمام وہ لوگ جو کمیونٹی سے ہمارے لوگ جو ہے وہ یہاں سے رخصت ہو گئے، ان سب کے لیے بھی پیر صاحب دعا کریں گے، اور میں آخر میں جناب آج کے اس جو پروگرام ہے اس کو ٹیکنیکل اعتبار سے یا ہر اعتبار سے ممکن بنانے میں جس شخص کا سب سے زیادہ رول ہے وہ ہے ہمارے غلام دستگیر خان صاحب، جو اس کیمرے کے پیچھے کھڑے، جو آپ کو سامنے دکھائی نہیں دے رہے لیکن وہ اس کے پیچھے ہیں، جنہوں نے پورے پروگرام کو موٹیویٹ کیا، جگہ کا تعین کیا، ان سب لوگوں کو لنک کیا، سب کو جو وہ جوڑا ہے اور ملایا، اور اس سب کے لیے تمام ایفرٹ جو ہے وہ ہمارے اس بھائی کے ہیں جو ہر دل عزیز بھائی ہیں، اور جس دن سے جب میں نے ان کو پیر صاحب کے حوالے سے یہ بات بتائی تو یہ ویسے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ بہت یقین کریں کہ انہیں ایک تو میں نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہے، پھر جو کوئی بات اس طرح کی ہو تو اس میں یہ دل سے جو ہے وہ بڑا اس بات کا احترام کرتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ ان کے جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش اور محنت کو قبول فرمائے۔ تو میں جناب بغیر تاخیر کے جناب علی عباس بخاری صاحب سے گزارش کروں گا ہم سب لوگ پہلے سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ کلو شریف اور درود شریف پڑھ کے ملت کرتے ہیں۔ محترم پیر صاحب کے اور پیر صاحب جو ہے وہ دعا فرمائیں گے، پیر علی عباس بخاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قل هو الله احد الله بسم الصمد اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد محمد مبارک وسلم صلی علیہ وہاں سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے صرف ایک تو میرے بھائی ہیں اور جنہوں نے بہت خدمت بھی کی ہے پیر صاحب کے کرم حسین شاہ صاحب کی، زاہد حسین شاہ صاحب، ان کی طرف سے بھی آپ کا بھی چودھری اورنگزیب صاحب، غلام خان صاحب، اور جتنے بھی آج کے اس پروگرام کے جو پارٹیسپینٹس ہیں
उन सब का मोहतरम रियाज बाग साहब का, राजा यूब साहब का, राज लाल साहब का, सहाबत साहब, चौधरी शरीफ साहब, चौधरी नजीर साहब और खान साहब और बाकी जितने भी अहबाब ने जो पार्टिसिपेंट्स हैं आज के प्रोग्राम में, और बिल्कुल आप जिन्होंने इसका प्रोग्राम किया, हमारी सारी फैमिली की तरफ से आपका शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अता फरमाए, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जिस तरह अभी सब ने फरमाया, इंशाअल्लाह ये चूँकि कोरोना वायरस के बाद और लॉकडाउन के हालात जब थोड़े नॉर्मल होते हैं तो इंशाअल्लाह हिफाजती प्रोग्राम भी करेंगे, उनके लिए दुआ खैर का भी प्रोग्राम करेंगे, जहाँ उनके साथ चाहने वालों के इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे उन सबको दावत दें, उसमें बुलाएं, वहाँ बैशुक के लिए फातिह खानी भी होगी और इंशाअल्लाह सबकी तरफ से इज़हार ताज़ियत भी इंशाअल्लाह उसमें करेंगे। इसी के साथ दुआ के लिए जो पढ़ा है तो आमीन मिल्लत अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। आमीन। इलाहुल आलमीन, आज जो भी कलाम पाक पढ़ी गई है, सूरह फातिहा शरीफ, सूरह इखलास शरीफ, जो कुछ भी पढ़ा है तेरी बारगाह इलाहियत में पेश करते हैं, मौला कबूल मंजूर फरमा। आमीन। के बाद इसका सवाब आका इनामदार फरमा। सहाबा किराम, अज़वाज मुतहहरात, गुरूए ज़मीन के तमाम अंबिया, औलिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन की बारगाह में पेश करते कबूल फरमा। आमीन। हुए सैयद कराम हुसैन शाह साहब की रूह को इसाले सवाब का मंजूर फरमा। आमीन। वो इजाद में फिर हुसैन शाह बात जितने भी आपके खानदान से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस दुनिया फान से पर्दा फरमा चुके, उनकी बख्शो मग़फ़िरत फरमा, दर्जात में बुलंदी अता फरमा। या इलाही पीर सैयद कराम हुसैन शाह साहब ने अपनी ज़िंदगी बड़े हुस्न अखलाक के साथ गवाही देते हैं, उन्होंने बड़ी नेकी के साथ, इखलास के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ तेरी दुखी इंसानियत की खिदमत में गुजारी है, लोगों के दुख दर्द बांटने में गुजारी है। मौला उनकी कब्र पर हज़ार करोड़ रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। आमीन। करम की, अपनी रहमत की, अपनी अता की, अपनी मग़फ़िरत की, अपनी बख्शिश की बारिश फरमा। उनकी हद निगाह कुशादा फरमा। अकाली ज़मान की ज़ियारत और पहचान नसीब फरमा। क़यामत इस्लाम की शिफात कुबरा नसीब फरमा। गुजरना आसान फरमा। यहाँ पर नेकियां हसनात की अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर उनके हर दर्जात में हस्ब हाल बुलंदी और रिफत और बुलंदी अता फरमा। इस्लाम के दस्ते अक़दस हौज़ कौसर के जाम अता फरमा। आपने इसमें तामन किया है मौला, आज का इंतजाम सजाया है। मोहतरम महमूद रियाज साहब ने, रंगज़ेब साहब ने, राम दस्तगीर साहब ने और जितनी भी इनकी पूरी टीम है मौला, इनकी कोशिशों को कबूल फरमा। इनके अहबाब में से, रिश्तेदारों में से जो भी कोई दुनिया फन से पैदा फरमा चुके हैं, उन सब की बख्शो मग़फ़िरत फरमा। इसमें शामिल होने वाले इन तमाम अहबाब ने, जितने बुजुर्गों ने एक एक ने बढ़कर अपनी मोहब्बत का इजहार किया मौला, इनके खानदान में, इनके घर वालों में से प्यारों से उन सब की बख्शो बुलंदी अता फरमा। इलाहुल आलमीन सबके हाल पे अपना रहम करम फरमा। हमें मारिफत हुजूर का इश्क तो इता अता फरमा। नमाज पंज गने हकीकी मानों में कायम करने की तौफीक अता फरमा, अमल करने की तौफीक अता फरमा, इस्लाम पर और खात्मे ईमान पर फरमा। सबके रिज़्क़ में, इल्म में, अमल में खुशहाली अता फरमा, सुकून अता फरमा, सबके घरों में सुकून अता फरमा। रिज़्क़ हलाल के वसी और कुशादा आमीन। तमाम की जायज़ नेक दिली ख्वाहिशात और तमन्नाओं को पूरा फरमा। खाना के हाल पे करम फरमा। तू रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है, राज़िक मौला है। अपनी रहमत, अपने करम और अपनी सखा के सदके अपनी रहमत से मौला, अपने करम से, अपनी अता से भर दे, अपनी सखा से भर दे। सबके हाल पे मुकरम फरमा। इलाहुल आमीन, जहाँ मुसलमान का शिकार हो रहे हैं, उनको आज़ादी और रिहाई नसीब फरमा। हमारे उनको आज़ादी और रिहाई नसीब फरमा। उनके लिए बेहतर असबाब पैदा फरमा। जहाँ जहाँ भी अल्लाह मुसलमान जुल्म सितम का शिकार है, आमीन फरमा। इस कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से निजात अता फरमा, से निजात अता फरमा। बल्कि मक़ासिदना व फ़िलना मा मदाना वसल करमी, जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा, आमीन। दूर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
جزاک اللہ جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ تمام پارٹیسپینٹس کا. تو اسی پہ جو محفل ہے اس کو اختتام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ریاض بٹ صاحب, رائے سلاوت صاحب, رایا ایوب صاحب, استاد جراد صاحب, علی بخاری صاحب, محترم شوقی کرام صاحب, کونسل نذیر صاحب, کونسل شریف صاحب, رایا لطیف صاحب, فرمویرہ فلو تمام, اور ہمارے رایا شبیر صاحب جو آج کے پروگرام کے کو ہوسٹ نہیں بلکہ میجر کو ہوسٹ ہیں, اور ان کا صدر پی ڈبلیو اے. میں کہوں گا تا یاد صدر جو 2-4 ہی ہوئے ہیں دنیا میں, اور ایک ہمارے صدر جو پی ڈبلیو ایس لو ہیں ماشاءاللہ. اور انہوں نے ہم نے اپنی والنٹیئرلی سروسز جو وہ رائے شبیر صاحب کو دی ہیں کہ جو کرونا کے حالات اس وقت ہیں اور سلو کے اندر جو کمیونٹی جو لوگ یعنی افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے سروسیں انہوں نے اوپن کی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ریکمینڈ کریں جو غریب لوگ ہیں ان کے گھروں میں کھانا اور راشن جو ہے وہ ہم نے پہنچانا ہے. وہ ان کوکڈ فوڈ جو ہے وہ پہنچایا جائے گا جس میں چاول, گھی, ہر طرح کی چیزیں ہوں گی. تو یہ آپ سب سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ بھی اپنے نام جو آپ سے جو جن لوگوں, اور انہوں نے کہا یہ پردے میں رہے گی بات, یہ نہیں اس بات کو اوپن نہیں کرنا ہے لوگوں کے گھروں تک. ہم جو لوگ آپ سمجھتے ہیں اس قابل ہیں اس طرح کے ہیں وہ ان کے نام دیں ہمیں تاکہ ہم ان تک یہ جو فوڈ ہے وہ پہنچایا جائے ان کے گھر تک. جس کسی کو بھی آپ جانتے ہیں اور جو ہارڈ مشکل وقت میں جا رہا ہے اس وقت, تو ہم ریڈی ہیں اس کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے. تو آپ پلیز ان کے نام بے شک ضرور دیں ہمیں. بہت شکریہ جی, آپ بہت شکریہ. ٹر گئے یار محبتاں والے, لے گئے نال احاسے, دل نہیں لگتا یار محمد چاہیے کیڑے پاسے. باپ مرے سر ننگا ہوندا ہے, ویر مرنے کنڈ خالی, آواز محمد بخشا کوڑ کرے رکھوالی. پائی پایا دے درد وڈو دے ہوئے, پائی پایا دے درد وڈو دے, پائی پایا دیا بابا باپ سرے دار تاج محمد, ماواں ٹھنڈیاں چھاواں, اچیاں لمیاں ڈالیاں تے ہنے کڑیاں جناں دیاں چھاواں, ہر ایک چیز بازاروں لب دی پر نہیں لب دیاں ماواں. وے مایا سونیا دکھیے دی گل دکھیا جانے,